If you are an aspirant of government examination in India, you must have heard one statement multiple times that you have to revise the things a lot before the actual examination. This is the very common statement that you must have heard from each and every mentor, irrespective of the examination you are preparing for. So everyone keeps saying that you have to revise a lot, but no one tells how to actually revise the things. What should be the strategy for revising the things? What should be the approach for revising the things? This is not told by anyone, and this is what I am going to tell you in this particular video. So I'm going to tell you the secret how to revise the things, how many times you need to revise the things so that you can retain the things, retain the concepts for a longer period of time. So friends, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. My name is Prakash and let's discuss the art of revision. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस, बट स्टार्ट करने से पहले वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, इफ यू आर एन एस्पिरेंट who feels कि मुझे यहां पे एक बार कंपोनेंट खत्म हो जाए उसके बाद ही फाइनल रिवीजन करूंगा, so this is a very poor strategy. So you have to avoid the approach of revising things only after completion of the syllabus. Rather, the focus should be on the periodic revision. Guys, periodic revision is very powerful and it is very necessary if you want to succeed in the examination. This will give you the confidence, and if you are going in the right direction, periodic revision will definitely tell you so that you can back on that track, right? So avoid हैविंग दिस अप्रोच कि एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद में फाइनल रिवीजन करूंगा एक ही बार. गाइज, इसको रखिए, पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू डू द पीरियोडिक रिवीजन, हाउ टू मेक द पीरियोडिक रिवीजन. दिस इज द आर्ट बेसिकली विच नो वन टेल्स हियर. सो यहां पे नंबर फर्स्ट इज दैट यू हैव टू मेक रिवीजन इन 5 फेजेस. या यू हर्ड राइट, यहां पे आपको 5 डिफरेंट फेजेस में रिवीजन करना है. नंबर फर्स्ट इज इमीडिएट, देन आफ्टर 15 days, देन आफ्टर 21 days, after 30 days, and final revision at the end. Guys, if you follow these 5 phases religiously, believe me, you will remember the concepts forever. आपको फिर concepts दोबारा कभी नहीं बोलेंगे, provided आपने revision इस tenure में इन phases में किया हो. I will give you the example also किस तरीके से you can do the revision in different 5 phases. चलिए देखते हैं उसको example की help से. So friends, considering that you have in any particular component you have 20 topics, ठीक है, चाहे वो कोई भी component. if you are an aspirant of regulatory bodies examination, specifically RBI की बात करें अगर, तो suppose RBI में ESI में suppose you have 20 topics, और FM में you have 20 topics, ठीक है, चाहे NABARD में बात करें, ARD में you have 20 topics. so this is common for every examination, ठीक है. so I'm just taking an example कि suppose there are 20 topics in a component, so how you will complete the topics and how you will make the revision of these 20 topics, this is what we are going to understand here. So friends, in the 20 topics what you have to do, we will be seeing it. First of all, आपको टॉपिक कवर करना है, then periodic revision का शेड्यूल क्या रखना है, and at the end you have to make the final revision. And here all 5 phases will be covered. So number first is from day 1 to day 4. I am considering that you are completing 4 topics. Now here यहाँ पे things क्या है, थोड़ा सा अलग हो सकती हैं. You may take more time, हो सकता है आपको 1 हफ्ते, हो सकता है आपको 10 दिन, हो सकता है 15 days लग जाए 4 टॉपिक्स खत्म करने के लिए. सो दैट इज अप टू यू, ठीक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से आप करिए. बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. सपोज इनिशियल 4 days में अगर आप 4 टॉपिक्स खत्म कर रहे हैं, देन व्हाट शुड बी द रिवीजन स्ट्रेटजी आफ्टर कंप्लीटिंग दोस 4 टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ब्रेक एंटायर 20 टॉपिक्स इनटू 5 पार्ट्स. 4 टॉपिक्स को ब्रेक कर लीजिए, 4 टॉपिक्स का ग्रुप बना लीजिए. इसी को हम बोल रहे हैं पीरियोडिक रिवीजन. तो आपने एक बार कम टॉपिक्स किए, उसको आपने रिवाइज कर लिया, फिर फर्दर आपने आगे वाले टॉपिक्स के लिए मूव किया, उसको भी रिवाइज करना है. इस तरीके से हमें यहाँ पे प्रोसीड करना है. गाइस, आइए देखते हैं. तो यहाँ पे वी हैव डिवाइडेड 20 टॉपिक्स इनटू 5 पार्ट्स. 4 का हमने ग्रुप बना लिया. तो इनिशियली डे 1 से डे 4 तक हमने 4 टॉपिक्स कवर कर लिए. देन फर्स्ट रिवीजन यू विल मेक इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग द 4 टॉपिक्स. ऑन डे 5th and day 6th you will make the first revision, which we have seen the immediate revision. So this is the immediate revision. Immediately after completing the 4 टॉपिक्स यू विल मेक द रिवीजन ऑन डे 5th and day 6th. आफ्टर दैट यहां पे आपको 15 डेज के बाद, ठीक है, यहां पे इस डेट से यहां से 15 डेज के बाद यू विल अगेन रिवाइज दिस टॉपिक 1 2 3 4, राइट. तो यहां पे यू कैन सी डे 20 and 21 में यू विल अगेन रिवाइज ऑल दीज 4 टॉपिक्स. देन उसके बाद फर्दर यहां से आप 21 डेज यू विल काउंट फ्रॉम हेयर ओनली, यहां से आप 21 डेज काउंट करेंगे. देन ऑन डे 41 से 42 में यू विल अगेन रिवाइज द 4 टॉपिक्स. और उसके बाद यहां पे 30 डेज में गाइस, 30 डेज में अगेन यहां पे यू विल रिवाइज द थिंग्स वंस अगेन. सो ऑन डे 71 and 72 यू विल अगेन रिवाइज दीज 4 टॉपिक्स. सो दिस इज हाउ यू हैव टू एक्चुअली मेक द रिवीजन, एंड दिस इज द पावर ऑफ पीरियोडिक रिवीजन कि एक बार आपने इस सीक्वेंस में इन फेजेस के साथ अगर आपने रिवाइज कर लिया, बिलीव मी, आपको जो कॉन्फिडेंस होगा एग्जामिनेशन में, साथ ही आप
आपको जो कंसेप्ट होंगे बिल्कुल बाय हार्ट हो जाएंगे, ठीक है, फिर आपको डाउट नहीं होगा। एक्चुअली एग्जामिनेशन में जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं सो वी गेट कंफ्यूज कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट और ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है, वहां पे जो कंफ्यूजन होता है दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ रिवीजन। बट इफ यू फॉलो दिस रिवीजन स्ट्रेटजी, बिलीव मी आफ्टर दैट यू विल बी इनफ कॉन्फिडेंट इन द एग्जामिनेशन कि आप आंसर देखकर ही मार्क कर देंगे। मूविंग अहेड, यहां पे डे 7 to 10 में वी आर टेकिंग नेक्स्ट सेट ऑफ टॉपिक्स, टॉपिक 5, 6, 7, 8, अगेन सेट ऑफ 4 टॉपिक्स। देन इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग यहां पे 8 topics you will immediate make a revision on day 11th and 12th, same that we have followed in the case of topic 1 to 4. then उसके बाद again next 15 days में you will again make the revision of this, right? then उसके बाद again next 21 days में you will make the revision of these topics, and after that you will make the revision of topics after 30 days. तो ये डेज कहां से स्टार्ट होंगे, ये डेज इसके बाद से, यहां से 15 डेज काउंट होंगे, फिर इस डेट से 30 डेज का 21 डेज काउंट होंगे, देन इसके बाद से 30 डेज काउंट होंगे. So this is how you have to proceed. Then moving ahead to the next set of topics, day 13 से day 16 we are taking next set of topics 9, 10, 11 and 12. So day 17 and 18 में immediately खत्म करने के बाद you will make a first revision of topic 9 to 12. Then again 15 days में ये next set of revision again. Then 21 days में again next set of revision and 30 days में again next set of revision. I hope you are getting it. ठीक है. Moving ahead on the next set of 4 topics 13, 14, 15 and 16, जैसे ही खत्म होगा day 23 and 24 में you will have the first revision of topic 13 to 16. Then on 15th day you will have 38, 39 day में again you will make the revision. 21 days after this you will make revision on day 59 to 60, and then after 30 days from here you will make the revision of these 4 topics again. So these are the 4 phases. Final phase I will tell you, but यहाँ पे last set of topics you will be discussing, you will be covering from day 25 to 28 में यहाँ पे topic 17, 18, 19 and 20. ठीक है जी. यहाँ पे day 29 and 30 में you will immediately make the revision once you complete the topic 17 to 20. Then after that day 44 से 45 में after 15 days from here you will make another revision. Then another revision on day 65 and 66, that is 21 days after the this one revision, and उसके बाद after 30 days यहाँ पे day 95 and 96 में you will again make the revision. So this is how you have to revise the things. यहाँ पे अब चीजें हो सकती हैं, आपके सिलेबस में हो सकता है 15 टॉपिक्स हो, आपके सिलेबस में हो सकता है 25 टॉपिक्स हो, 30 टॉपिक्स हो, दैट्स नॉट एन इशू. द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रोसीड अकॉर्डिंग टू दिस वे. पहला रिवीजन जो आपको करना है इमीडिएटली खत्म करने के बाद करना है, देन उसके बाद 15 डेज में, देन 21 डेज में, देन 30 डेज में. So, इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स कवर करना. नाउ वन क्वेश्चन मस्ट बी कमिंग टू योर माइंड कि सर फाइनल रिवीजन कहां है, राइट? फाइनल रिवीजन, क्योंकि वी हैव डिस्कस्ड 5 फेजेस ऑफ रिवीजन और यहां पे 4 ही फेज हो रहे हैं, तो 5th फेज क्या होगा? 5th फेज हमारा फाइनल रिवीजन होगा जो आप सारा कंप्लीट करने की बात करेंगे. गॉट इट? तो 4 रिवीजन यहां पे पीरियोडिक रिवीजन आपने कर लिए, देन 5th रिवीजन जो आप करेंगे वो लास्ट के 15 डेज. इन सबको खत्म करने के बाद 3-4 दिन का गैप लीजिए. जैसे यहां पे यू कैन सी हियर कि डे 96 में यू आर कवरिंग topic 70 to 20, right? After that you can take 4 to 5 days gap, and after that day 100 से 115 में you can make the entire components revision. ठीक है, फिर entire component का आप रिवीजन करेंगे in around 15 days. So this is how you have to cover the things. Now one very very important question that must come to your mind at this point of time is कि सर जब हम रिवीजन में इतना टाइम लगा रहे हैं तो क्या हम नए टॉपिक कवर कर पाएंगे? फ्रेंड्स, नए टॉपिक जो है वो आप थोड़ा सा लेट भी कवर कर लीजिए, देयर इज नो इशू अबाउट दैट. ठीक है, थोड़ा सा डिले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. आप नए टॉपिक्स कम कवर कर लीजिए, बट बिलीव मी इसको नहीं छोड़ना है. दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. पीरियोडिक रिवीजन इज वेरी पावरफुल, बट नोबडी इज telling you here कि आपको periodic revision करना है. Everyone is saying only कि you just have to revise the things. अब how to revise, this is not told by anyone. So guys, this is how you have to proceed. This is how you have to strategize the things with respect to the revision. चाहे वो कोई भी component हो, चाहे वो कोई भी examination हो, if you are following this strategy for the revision, believe me, you will be enough confident in the examination कि आप एक बार में क्वेश्चन देखकर आप मार्क कर देंगे. ठीक है, अगर आपने वो चीज पढ़ी है तो. अगर नहीं पढ़ा है तो फिर कोई बात नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो उसको आप एक बार देखकर ही मार्क कर देंगे. सो दिस इज हाउ फ्रेंड्स यू हैव टू प्रोसीड. और ये बहुत पावरफुल है, बहुत मजा आएगा आपको इसे पढ़ने में, बार बार पढ़ने में. और आपने अगर 4-5 बार कोई चीज पढ़ ली, आप खुद ही सोचिए, इफ यू आर कवरिंग एनीथिंग फॉर 4 or 5 टाइम्स, तो वो चीज आपको फॉर एवर के लिए याद हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्रोसीड, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू हियर. एंड फ्रेंड्स, हियर वी हैव लॉन्च्ड द RBI Grade B 2025 फाउंडेशन कोर्स विच इज लक्ष्य बैच हेयर. सो यहाँ पे जो हमारा फोकस है वो है आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग पर काम करना. यहाँ पर हमारा ये फोकस नहीं कि हमने आपको कोई टॉपिक बता दिया आप उसको पढ़ लीजिए, या कोई बुक रिकमेंड कर दिया आप वहां से पढ़ लीजिए. यहाँ पे वी विल बी फोकसिंग ऑन द फाउंडेशन बिल्डिंग. थिंग्स विल बी फ्रॉम वेरी स्क्रैच. यू आर
यू कैन बी फ्रॉम एनी बैकग्राउंड, आप चाहे कॉमर्स से हो, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे आर्ट बैकग्राउंड से, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो गाइज, यहाँ पे जो चीजें स्टार्ट होने वाली दैट विल बी कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच, एकदम स्क्रैच से हम यहाँ पे चालू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है फाउंडेशन बिल्डिंग पर है। पहले हम आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद वी विल मूव अहेड, उसके बाद हम वहां पे एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट तक पहुंचेंगे। सो क्लासेस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर फेज 1, फेज 2 की क्लासेस इज अबाउट टू स्टार्ट वेरी सून, सो यू कैन चेक द शेड्यूल, द लिंक इज गिवन इन द वीडियो ऑफ इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। एंड गाइज, फॉर सब्सक्राइबिंग द कोर्स यू कैन यूज द कूपन कोड प्रकाश, दिस इज माई कूपन कोड, दिस इज माई नेम एज वेल। सो if you are subscribing any course on textbook platform, you can simply use this coupon code Prakash, and after using this coupon code you can see a drastic reduction in the final price that you have to pay, and that will make the course more affordable for you. And one very very important thing guys, this is my personal Telegram group, so you should join this Telegram group. This is very very important. Again, reason being here, you can directly connect, you can directly have connection with me. Whatever doubts you have, whatever content related doubt, whatever strategy related doubts you have, you can directly connect with me by simply pushing your message in the group itself, and I personally be resolving your query, right? तो यहाँ पे फिर आपको बैकएंड टीम को किसी को कॉल नहीं करना है, ना ही बैकएंड टीम को मेल करना है. You can simply post your query in the group, and I personally be taking care of that. So this is all. I hope you enjoyed the session. I hope you have learned ki how to make the revision, guys. Very very important. You have to make the revision according to this, so you will be confident enough in the examination. So thank you very much. We'll meet in another informative video. Till then, goodbye and happy learning, guys.